दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है गोल्डन रूल। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। देखिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है गोल्डन रूल, व्हाट इट इज़ बेसिकली ए मॉडिफाइड अप्रोच टू ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। यानी कि जो लिटरल रूल है उसका मॉडिफिकेशन है। और what it states that the court should generally interpret statutory words according to their natural and ordinary meaning, right? Natural and ordinary meaning, and to determine the legislature's intent. However, if applying the literal meaning results in absurdity, inconsistency, inconvenience, injustice, hardship or evasion, right? इसका मतलब यदि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे कानून बनाने वाले चाहते थे, देन वी कैन एडजस्ट what we can do we can adjust the interpretation, right? We can modify the meaning, and thereby what we can do is modify the meaning, but only to the extent and no further दैट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट सच कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब इतना भी नहीं स्ट्रेच कर देना कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, बट सर्टेनली हम जो अर्थ चाह रहे हैं वो अर्थ आए, इसके लिए वी कैन लिटिल बिट स्ट्रेच, वी कैन मॉडिफाई द मीनिंग दैट इज़ नोन एज गोल्डन रूल। नाउ दिस रूल इज called as golden rule because it removes ambiguities. What it does, it removes ambiguities in statutory interpretation and therefore resolve all the issues. Therefore, it resolves all the issues, and therefore it is known as golden rule because it provides a solution to the problem, and it allows for some modification of the literal meaning. That's why it is also known as modifying method of interpretation. Now, this rule emphasizes that the effects and the consequences of an interpretation are crucial indicators of a statute's true intent. Should I repeat? The effects and consequences of an interpretation are crucial indicators, and therefore it is presumed that the legislature does not intend certain undesirable outcomes, and so therefore interpretation leading to such results should be rejected. If the interpretation leads to undesirable outcomes, it should be rejected. Therefore, when a statute allows for multiple interpretations, and in that situation the court has the discretion to evaluate the possible outcomes and choose the interpretation that best aligns with the legislature's true purpose. That means the court can fine-tune, the court can align that interpretation to the true purpose of the legislation. Therefore, there may be instances where even if a literal interpretation results in unintended consequences, and the court may still uphold it if there is a lawful justification for doing so. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि लिटरल रूल से कोई हार्श रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट के पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन है, इन दैट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कैन स्टिक टू लिटरल इंटरप्रिटेशन. बट if a statute may be interpreted within a narrow scope, even if its language does not impose such a limitation, in some cases a restricted interpretation may be adopted based on the statute's true purpose, even though a strict grammatical reading would extend its application much further. Meaning thereby we should always adhere to the true intent of the legislature. So whenever there are multiple interpretations, the court will prioritize the one that appears most reasonable, and therefore what the court will do, court will certainly avoid those interpretations that will lead to unreasonable, inconvenient or anomalous outcomes. If an interpretation results in manifest injustice, the courts will generally hesitate to enforce it, बिकॉज कोई भी कानून बनाने वाले ये नहीं चाहते कि अनजस्ट रिजल्ट्स आएँ. Likewise, any interpretation leading to an absurd conclusion will be also rejected because the primary duty of the court is to prevent evasion of the law,
and to ensure that the mischief the statute aims to address is effectively controlled. Now you see, there can be two approaches for golden rule. One is narrow approach. If a word has multiple meanings, the court will select that interpretation that avoids absurdity. So in case of multiple meanings, the court will select that meaning that is appropriate and that avoids absurdity. In case of broad approach, if the literal meaning leads to unreasonable result, the court will modify the wording to prevent the unjust outcomes. So therefore, the golden rule of interpretation, how does it work? The golden rule of interpretation functions by allowing judges to refine the literal meaning of a law and thereby align its meaning with its true intended purpose and prevent unreasonable outcomes. यानी कि पहली बात तो ये हुई कि जो गोल्डन रूल है ये जजेस यूज़ करेंगे लिटरल मीनिंग को अलाइन करने के लिए विद इट्स ट्रू इंटेंडेड पर्पस एंड प्रिवेंट अनरीजनेबल आउटकम्स. दूसरा, जजेस प्रिज्यूम करते हैं कि जब लॉ मेकर ने लॉ बनाया तो उनके दिमाग में एक ब्रॉड और रीजनेबल मीनिंग रहा होगा रादर देन ए स्ट्रिक्ट meaning, strict interpretation, and therefore what they can do is the grammatical meaning of words can be adjusted to eliminate such contradiction or absurd results. Similarly, court can focus on the broader objectives, values and spirit of the law rather than simply focusing on the exact wording. Similarly, why golden rule is important? You see, the golden rule plays a crucial role in legal decision making and thereby ensuring that laws are applied in a fair and just manner. Number two, it promotes fairness and justice, and judges they avoid unreasonable and unjust outcomes that may arise from a strict literal interpretation. Now, this rule we call golden rule also adapts to societal changes and therefore aligns laws in a way that evolves with the societal values and norms. यानी कि उनको जो भी सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं लॉ को उसके साथ मैचअप करता रहता है थ्रू इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हम उसके मीनिंग को मॉडिफाई करते रहते हैं. उसके मीनिंग जब मल्टीपल मीनिंग्स होंगे तो एक मीनिंग ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि जो लॉज को सोसाइटल चेंजेस के साथ अपग्रेड करे. सिमिलरली जो आपका एम्बिग्विटीज़ हैं उनको जजेस रिजॉल्व करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को हम जब गोल्डन रूल को इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए व्हाई इट इज़ अप्लाइड, व्हेन इट इज़ अप्लाइड. व्हाई इट इज़ अप्लाइड? टू गेट द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर. And when it is applied? To prevent absurdity, when a strict interpretation leads to illogical, impractical, unreasonable outcome, right? And to align with legislative intent, when the literal meaning contradicts the law's intended purpose and therefore a modification is required. अगर legislative intent से जो कानून की व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, वो मैच नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं. लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस वेयर गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वाज अप्लाइड टू इंश्योर दैट लीगल प्रोविजंस आर इंटरप्रेटेड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर, देयरफॉर अवॉइडिंग absurd और अनजस्ट आउटकम्स. द फर्स्ट केस वाज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस केसर जहान बेगम. 1963 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है. इस केस के अंदर क्या हुआ कि रेस्पोंडेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और वो फाइल की विद इन 6 months ऑफ द लर्निंग दैट लर्निंग अबाउट द कंपनसेशन अवार्ड. जब उसको पता लगा कि कंपनसेशन अवार्ड हो गया है उसके 6 months में की, जबकि कानून में लिखा था कि दैट शुड बी फाइल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द अवार्ड्स एक्चुअल डेट. यानी कि करना तो था जब जो एक्चुअल डेट थी अवार्ड की उससे विद इन 6 months, लेकिन किया पता लगने के 6 महीने के अंदर. नाउ द कोर्ट्स हेयर दे क्लैरिफाइड
that the statute may be interpreted accordingly when fairness requires it, यानी कि उसको माना कि वो जो within 6 month हुआ है. Now the court ruled in favor of the respondent, holding that the limitation period should begin from the date of the knowledge of the award. Now the court reasoned that justice and fair play require that a person must be aware of an award before they can challenge it. जब उसको पता ही नहीं है तो वो उसको इन्फोर्स कैसे करेगा, और ये एक अनफेयर और एक इम्प्रैक्टिकल आउटकम होता अगर हम उसका लिटरल मीनिंग लेते तो. दूसरा देखिए, दूसरा केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस आज़ाद भारत फाइनेंस कंपनी, ये ईयर 1967 का केस है. अब इस केस के अंदर क्या हुआ? इन दिस केस द रेस्पोंडेंट ट्रक वाज कॉन्फिस्केटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ओपियम एक्ट 1878 as modified by Opium Madhya Bharat Amendment Act 1955. Because it was used to transport contraband opium without the respondent's knowledge. Now the amendment changed the wording shall be liable to be confiscated to shall be confiscated, making confiscation mandatory. अब इसमें क्या हुआ कि जो पहले वर्ड थे दैट वाज शैल बी लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, यानी कि उसको पकड़ा जा सकता है, और दूसरा जो अमेंडमेंट होके बन गया शैल बी कॉन्फिस्केटेड, इसका मतलब पकड़ा जाएगा हर सूरत में. ना सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इस तरह का जो अमेंडमेंट है वो अनलॉफुल है और ट्रक को रिलीज़ करना पड़ा, क्योंकि जो वर्ड शैल है it sometimes may be interpreted as may rather than mandatory, especially when strict interpretation would lead to absurdity, hardship or injustice, since the respondent was unaware of the illegal use of the turk. तो उसको पता ही नहीं था कि इस टर्क में कोई ओपियम नाम की चीज़ है, तो उसके ऊपर हम कैसे उसको पकड़ सकते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट केस लो है दोस्तों. नाउ द कोर्ट्स में इंटरप्रेट मैंडेटरी लैंग्वेज एज डिस्क्रिशनरी टू अवॉइड इनजस्टिस. नाउ दीज रूलिंग डेमोन्स्ट्रेट द जुडिशरी रोल इन इंश्योरिंग फेयरनेस बाय इंटरप्रेटिंग लॉज इन अ वे दैट अलाइंस विद लेजिस्लेटिव इंटेंट while avoiding unreasonable outcomes. Now third case is Lee versus Knapp 1967 का केस है, क्वींस बेंच का. इस केस के अंदर क्या हुआ? The court had to interpret the meaning of the word stop under section 71 clause 1 of the Road Traffic Act 1960. It required a driver involved in accident to stop. Now the driver in question, what he did was, उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो एक मिनट से भी कम समय के लिए रुका और चल पड़ा. तो इसका हम अगर लिटरल मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब वो रुका तो, बट दैट होल्डिंग फॉर एन इंस्टेंट वाज इनसफिशिएंट, वो सही नहीं था कानून की नज़र में अगर आप देखो, बिकॉज द पर्पज़ ऑफ लॉ वाज टू इंश्योर दैट द इंटरेस्टेड पार्टी हैज़ ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट. और उसने क्या किया कि केवल खाना पूर्ति की, कुछ समय के लिए रुका और चल पड़ा, जबकि जो कानून का ट्रू पर्पज़ है वो हल नहीं हुआ. तो लिटरल मीनिंग देखते हैं तो उसका एब्सर्ड रिजल्ट आता है. तो इस केस में हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, रुकने का मतलब प्रॉपर तरीके से रुकना हुआ. ली वर्सेस नैप का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. आर वर्सेस एलन देखिए 1872 का केस है. इट इज़ ए लैंडमार्क लीगल केस जहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई हुआ था. अब इसके अंदर बाइगमी जो है सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 था, और इसमें जो वर्ड था दैट वाज मैरी, और उसका जो इंटरप्रिटेशन अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी आदमी सेकंड मैरिज नहीं कर सकता, और यदि सेकंड मैरिज करता है तो वो वाइड हो गया. अब मैरिज का मतलब प्रॉपर मैरिज करना नहीं है. यहाँ पे कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया कि इसका मतलब मैरिज सेरेमनी है, और यदि आदमी जो है मैरिज ना करके कोई सेरेमनी भी करता है मैरिज की, तो वो भी इलीगल होगी,
क्योंकि अगर इसके अलावा और कोई भी अगर हम इंटरप्रिटेशन लेते हैं तो फिर हम सेकंड मैरिज को रोक नहीं पाएंगे। इस केस के अंदर बड़ा क्लियर किया कि मैरी का मतलब सेकंड मैरिज ना हो के सेरेमनीज इन द नेचर ऑफ मैरिज है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो अगर लिटरल मीनिंग देखते हैं मैरी का तो वो होता है आपका सेकंड मैरिज करना, लेकिन इसका जो गोल्डन रूल से जो मीनिंग निकाला दैट वुड बी किसी तरह की मैट्रिमोनियल सेरेमनी परफॉर्म करना। अब एल्डर वर्सेस जॉर्ज का केस देखिए, 1964 क्वींस बेंच का है। अब इसमें क्या किया कि जो फ्रैंक एडलर था इसने अनलॉफुली एंटर किया जो आपका रॉयल एयरफोर्स स्टेशन में, जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री साइट थी। तो ही वाज चार्ज एंड कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1920, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि नो पर्सन इन द विसिनिटी ऑफ एनी प्रोहिबिटेड प्लेस शैल ऑब्स्ट्रक्ट एनी मेंबर ऑफ हिज मैजेस्टीज फोर्सेस इंगेज इन देयर ड्यूटीज़। अब वो जब स्टेशन के इनसाइड था तो एडलर ने ऑब्स्ट्रक्ट किया है मेंबर ऑफ रॉयल फोर्सेस को, आरएएफ को के मेंबर को, और उसका कन्विक्शन हुआ। एडलर ने अपील की और उसने कहा कि जो वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट है, स्पेशली इन द फ्रेज इन द विसिनिटी ऑफ, डिड नॉट अप्लाई टू समवन हु वाज इनसाइड द प्रोहिबिटेड एरिया। यानी कि इन द विसिनिटी ऑफ का मतलब हुआ कि आसपास, इनसाइड नहीं। इस केस में उसने क्लेम किया कि सिंस ही वाज विद इन द स्टेशन एंड नॉट मेयरली नियर इट, ही हैड नॉट टेक्निकली वायलेटेड द लॉ। अब कोर्ट ने दोबारा से लिटरल मीनिंग ना लेके यहाँ पे इन द विसिनिटी ऑफ का अर्थ किया टू इंक्लूड इनसाइड द प्रोहिबिटेड प्लेस। द अपील वाज डिसमिस एंड एडलर कन्विक्शन वाज अपहेल्ड। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये एक ब्रॉड अप्रोच हुई यहाँ पे, जहाँ पे रॉन्ग वर्डिंग ऑफ स्टैट्यूट इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट इट्स इंटेंडेड पर्पस। और इस तरह से हम एक सिचुएशन को प्रिवेंट किया हमने, जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट एरिया को हमने माना कि इन द विसिनिटी ऑफ के अलावा इनसाइड भी इंक्लूड होता है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है दोस्तों गोल्डन रूल का। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज ए प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन यूज्ड बाय जजेस व्हेन द लिटरल रूल लीड्स टू एन अब्सर्ड और अनरीजनेबल आउटकम। जब हम लिटरल मीनिंग देखते हैं और वो अपसर्ड रिजल्ट्स लेके आता है तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं। और इट अलाउज कोर्ट्स टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ड और phrase in a statute to prevent results that are illogical, unjust, contrary or to public policy। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और इसी तरह वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियोस बनाए जाएं, डिस्कशन किया जाए, तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और इसी तरह हमारे चैनल को आप प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।